Hello everyone, I welcome you all on Target Uniform Services. This is UPSC CAPF 2017 Assistant Commandant Examination question paper, and in this we are going to analyze polity question of it with detailed analysis. First question is, the Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of which committee? It was constituted on the recommendation of Santhanam Committee. इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? In 1964, a executive resolution on the recommendation of Santhanam Committee. एक कमेटी बिठाई गई because there were so many cases of corruption, because India was recently at that time got independence and there was many cases of corruption in many department. So central government has constituted a committee under the chairmanship of Santhanam, and the committee, they did recommend one particular agency called as Central Vigilance Commission. तो उस टाइम पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज ओनली अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स they have no legislative backing. But in 2003, what happened? Parliament enacted a law conferring statutory status on the Central Vigilance Commission. तो उनको एक statutory status दिया गया. If I talk about the composition of Central Vigilance Commission, it consists of a chairperson plus not more than 2 vigilance commissioners. तो 3 की बॉडी है ये टोटल. और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का? इट वॉज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय अंडर वारंट इज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी. ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है किसकी रिकमेंडेशन पे? 3 मेंबर. और 3 मेंबर में कौन कौन है? वन इज प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है उस कमेटी का, अनदर इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, एंड थर्ड इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. और इनका टाइम पीरियड क्या होता है सीवीसी में? इट इज़ ऑफ 4 years ऑफ एज और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर. जिनकी 4 साल की सर्विस होती है या 65 ऑफ एज, उनको फिर रिटायरमेंट मिल जाती है. नेक्स्ट इज दे आर नॉट एलिजिबल. अगर ये एक बार अपॉइंटमेंट की हो जाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, आफ्टर दैट दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट अ फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. किसी भी डिपार्टमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती. ये प्रोविज़न क्यों है? टू एंश्योर देयर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, और ये बायस्ड ना हो किसी भी चीज़ में. दे विल शो अनबायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. और सीवीसी कैन बी रिमूव्ड, देयर रिमूवल ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव. और इनकी सैलरी अलाउंसेज एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीवीसी आर सिमिलर टू दोज ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. इनका हेडक्वार्टर कहाँ है सीवीसी का? इन न्यू दिल्ली. और it has all the power to regulate its own procedure, and they have the power of a civil court. There are 2 types of court, one is criminal, another is civil. तो civil की जितनी भी पावर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, वो पावर है. पावर लाइक पावर टू समन एनी पर्सन इन देयर कोर्ट. और लास्ट इज सीवीसी हैज़ टू प्रेजेंट एनुअली. जो भी इनकी रिपोर्ट होती है सीवीसी को प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है. प्रेसिडेंट फिर कहाँ पे? प्रेसिडेंट लेड डाउन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट. Our answer is D, Santhanam Committee. Second question is, the 9th schedule was added to the Constitution of India by First Amendment Act. और अगर मैं इसकी बात करूँ कि what was 14th Amendment Act of 1962, it incorporated पौंडीचेरी का. इसमें सब क्या होता? Incorporation. पौंडीचेरी become a part of India. Before 1962, Pondicherry was not a part. It was only a associated territory of India. Thereafter, in 93rd Amendment Act of 2005, it empowers the state to make special provision. जो आज आप देखते हैं जैसा reservation was given to that particular committee of OBC and SC and ST. It was under 93rd Amendment Act of 2005. So it says that the state will make special provision for the socially and educationally backward class or scheduled class or scheduled tribe in educational institution, whether it is of any type like private or whether it is of government aided. ठीक है. और 99th Amendment Act is, it replaced the collegium system. Collegium system means the system which recommends or appoints
जजेस ऑफ हायर जुडिशरी, लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है दैट इज थ्रू कॉलेजियम सिस्टम. बट व्हाट हैपन इन 2014, this present government brought a law in which they have replaced the collegium system with the National Judicial Appointment Committee. Collegium system में क्या है, all are from the judicial और judicial fraternity. But NJC में क्या था, there are 2 member of parliament also which will decide upon the appointment of judges in the Supreme Court or High Court. और टॉकिंग अबाउट दिस 9th शेड्यूल मोर. 9th शेड्यूल में क्या है, बेसिकली द एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर है, मतलब उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता. बट इन 1973 आफ्टर केशवानंदा भारती केस वी हैव डेवलप्ड, द जुडिशरी हैव गिवन अ concept called बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था कि जुडिशियल रिव्यू. सो देर आफ्टर 1973 एनीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल इट कैन बी रिव्यूड अंडर जुडिशियल रिव्यू. सो 1973 से पहले जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले थे दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकता. व्हाट आर दोज लॉ लाइक लैंड रिफॉर्म किया था, लैंड रिफॉर्म, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर. तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 आप याद रखना. और देयर इज अ डेट इज ऑल्सो गिवन अप्रैल 24, 1973. ऑन दिस डे द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. Third is, which one of the following cases in the Supreme Court of India dealt with the issue of creamy layer among the backward classes? Reservation we have talked about कि 93rd Amendment Act, इसमें इससे रिजर्वेशन आया था. बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट कि दोज पर्सन विच आर इकोनॉमिकली अफ्लुएंट, जिनको ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की बट स्टिल दे आर गेटिंग रिजर्वेशन, तो हमें उनको सेग्रीगेट करना है. एंड व्हाट विल बी द क्राइटेरिया था इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आपको लेके आना है कि अबव दिस पर्टिकुलर सीलिंग, इससे ज़्यादा किसी की इनकम है तो दे विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. और ये कौन से केस में दिया था, इट इज़ अंडर द इंदिरा स्वाहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कब आया था 1992. इसके क्या क्या जो वर्डिक्ट क्या थे सुप्रीम कोर्ट के, दे सेड दैट करंटली क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल टू ओबीसी इन रिजर्वेशन. ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ आर्म फोर्सेज एंड पीएसयू अलॉन्ग विद पीपल अर्निंग मोर लाइक 7 लाख पर एनम कम्स अंडर द परव्यू ऑफ क्रीमी लेयर. ठीक है, और ठीक है, आवर आंसर इज बी. बट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर KM नानावती केस. एवरीबडी आई थिंक वॉच द मूवी रुस्तम केस में क्या था, वन पर्टिकुलर नेवल ऑफिसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर हिज वाइफ. तो ये उससे रिलेटेड है. इट्स अ इनफेमस केस ऑफ 1995 इंडियन कोर्ट ट्रायल दैट कैप्चर्ड द पब्लिक इमेजिनेशन. इन द केस KM नानावती, द नेवल कमांडर, वॉज ट्राइड फॉर द चार्ज ऑफ मर्डरिंग प्रेम आहूजा, हिज वाइफ लवर और समथिंग, इनिशियल डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी. तो इससे रिलेटेड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, सज्जन सिंह केस. सज्जन सिंह केस में क्या था, द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट curtail any of the fundamental rights in the constitution. सज्जन सिंह केस से पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था. इंसिडेंट इज दैट के पार्लियामेंट हैड मेड एन अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन लॉज, बट आफ्टर जुडिशरी केम इन टू पिक्चर, जुडिशरी they said that in Sajjan Singh, a very famous case, the parliament could not curtail any of the fundamental rights because it is outside their power. तो आप याद रखना इसको. Fourth is, which one of the following judgment declared that parliament has no power to amend any of the provision of part 3 of the constitution of India? किस में कहा था ये? It is under गोलकनाथ. ठीक है, गोलकनाथ के केस में कहा था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है जो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स उसके प्रोविज़न को अमेंड करने का. सो आपको इसकी क्रोनोलॉजी की याद करनी है अच्छे तरह से कि विच कम फर्स्ट. गोलकनाथ कब आया था 1967 में. देर आफ्टर
केशवानंद भारती केस 1973, देर आफ्टर मिनर्वा मिल केस 1989। अब इनके प्रोविज़न पढ़ लेते हैं कि गोलकनाथ केस में क्या था। आर्टिकल 368 डज नॉट कंटेन अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली ए प्रोसीजर। ठीक है, द पावर टू अमेंड कम्स फ्रॉम द नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, देयरफॉर अमेंडमेंट विच टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट प्रोविजन कैन नॉट बी पास। तो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती। बट इन केशवानंदा भारती केस गोलकनाथ केस को ओवर रूल्ड कर दिया गया बिकॉज जुडिशरी हैज़ द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 368 में क्या कहा पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट हैज सेड दैट के the ruling established that principle that the basic structure cannot be amended on the ground that a power to amend is not a power to destroy। उन्होंने कहा कि parliament has the power to amend but those amendment cannot destroy the basic structure of the constitution। आप फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज लेके आइए बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और मिनर्वा मिल केस में क्या था, द कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस लिमिटेड पावर टू ग्रांट इटसेल्फ एन अनलिमिटेड पावर। इसमें क्या किया था, अंडर आर्टिकल 378 जो पार्लियामेंट ने है 378 की डेफिनेशन ही बदल दी थी। तो मिनर्वा मिल्स केस आया, उसमें बोला कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो लिमिटेड पावर है और इसमें अनलिमिटेड पावर उन्हें अमेंड कर दी थी कि पार्लियामेंट हैज़ द अनलिमिटेड पावर। सो इट्स अगेन जुडिशरी केम इनटू पिक्चर एंड इट इज़ ड्यू टू बिकॉज वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट लाइक चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या कंसेप्ट में क्या है कि इफ़ वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओवर रीच इट्स पावर another institution came into picture to suppress that institution, तो वहाँ पे checks and balances रहता है, तो इक्वेशन बनी रहती है। फिफ्थ इज who among the following is empowered to establish interstate council under article 263, so it is president of India। article 263 के अंदर क्या है, can establish such a council if at any time it appears to him that the public interest fulfill होगा अगर हम अंडर आर्टिकल 263 के अंडर इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमेटी इन 1990। द काउंसिल फंक्शन इज टू इंक्वायर, इंटरस्टेट काउंसिल का क्या फंक्शन है, टू इंक्वायर एंड एडवाइज अपॉन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट। अगर दोनों स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है लाइक वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, एंड लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, और एनी ट्रांसपोर्ट डिस्प्यूट, ठीक है, तो इट कम्स अंडर इंटरस्टेट काउंसिल। तो काउंसिल विल होल्ड अ मीटिंग और देयर दे विल डिस्कस ऑन दैट मैटर। Sixth is who among the following scholars has conceptualized the Constitution of India as a seamless web? It was conceptualized by Granville Austin। और ग्रैनवेल ऑस्टिन ने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया था कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नाउअडेज इट इज़ मोर इन ए न्यूज़, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, केसी वेयर, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था कि फेडरल बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कि फेडरल इन फॉर्म कि हमारा जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म के कौन से फीचर्स है, लाइक शेड्यूल 7 में वी हैव डिवीजन ऑफ पावर, there are union list, state list and concurrent list। and what is unitary in the sense we have a national emergency, we can center can impose president rule over state, so these are the features of unitary। second is मॉरिस जोनस, उन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कंसेप्ट दिया था, they called Indian constitution as a bargaining federalism। and the fourth is आइवोर जेनिंग्स, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज टेंडेंसी प्लस इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ सोलली फॉर द लॉयर्स बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इटसेल्फ इज सो डिफिकल्ट अ कॉमन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, दैट्स वाई आइवर जेनिंग कॉल इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। 7 is which of the following statement is or correct?
आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरनर्स। देखो दो तरह के राइट्स हैं विच इज़ एक्सक्लूसिवली गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, अनदर इज गिवन टू द बोथ फॉरनर्स प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीजन ऑफ इंडिया को जो राइट्स दिए गए हैं अंडर फंडामेंटल राइट्स, दीज आर 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये जो राइट्स है दीज आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट एनी राइट दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू द फॉरनर्स, प्रोवाइडेड जो फॉरनर है वो एनिमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो आर्टिकल जो 21 है इट इज़ आउटसाइड, दैट इज़ नॉट, ये देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया and the foreigners. Yes, this is a correct statement, but it is not exclusively for the citizen of India. Or second statement is article 16 of the constitution of India is available to the citizen of India only. This is also a correct statement. And article 15 of the constitution of India is available to both citizen of India and the foreigners. This is a wrong statement. It is only available to the citizen of India. So our answer is B. Question number 8 is, who among the following are entitled to get the benefit of equality before the law and the equal protection of law as enshrined under article 14 of the constitution? Equality before law and equal protection of law, these are two important concept. इसकी मैं separate class ले लूँगा, but for the time being आप इसको find out कीजिए कि which is the correct answer. First statement is all Indian citizens living in India, ठीक है। ये जो concept है equality before law and equal protection of law, is it applicable on all Indian citizens living in India? Second is all Indian citizens living abroad. Third is foreigners living within the territory of India, or all citizens born in India. Answer is 1 and 3, because all Indian citizens living in India, yes, they will get the benefit of article 14. And what about the second statement, all Indian citizens living abroad? If they are living abroad, if any injustice happen to them, any inequality happen to them, so how Indian government will compel the foreign country that injustice has happened to that particular person and the country should provide justice to them? तो वहाँ पे compel नहीं कर सकते. So second statement is wrong. Third is foreigners living within the territory of India. I have told you that there are certain rights which are also given to the foreigners and at the same time to the citizen of India, like article 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 4, 5, 6, 7 and 28. और क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट फोर्थ है, all citizens born in India, ठीक है, this is also a wrong statement. Born in India but now they are become citizen of Pakistan, बांग्लादेश, तो उनको आर्टिकल 14 के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट इज 9 क्वेश्चन. Which of the following statement about the provision of the Constitution of India is correct? First is minorities can establish and administer educational institute of their choice. So it is mainly related to the minority. So before reading all this statement, आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि आर्टिकल 30 says that right of minorities, whether religious or linguistics, two types of minority India recognizes. One is religious, अदर इज लिंग्विस्टिक्स. इन आर्टिकल 30 के अंडर जो है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. सो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ये कीवर्ड हैं जो राइट ऑफ माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 30 है. टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी. अनदर इज द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 13 is confined only to minorities, that is religious or linguistics, and does not extend to any section of society as under article 29. Article 29 says that any section of society means any particular community which are less in number in a particular area, तो वो भी minority मानी जाएगी. ऐसा किस में है? आर्टिकल 20 में, बट 30 में नहीं है ऐसा. Another is minority has not been defined in the constitution में कहीं भी define नहीं है minority. So let's coming back to the question. The first statement is minority can establish and administer educational institute of their choice. This is correct statement. B is only linguistic, ethnic and religious. देखो ethnic word नहीं था तो it's a wrong statement.
Third is every religious denomination has unfettered right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Not every, only this religious and linguistic minorities. Fourth is an educational institution established by a religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government. ऐसा कोई provision नहीं है, ठीक है. This is also a wrong statement. 10 is which one of the following is the correct sequence of different stages a budget has to go through the parliament. ठीक है, बजट पास जब होता है देर आर सर्टेन प्रोविजंस. उसका सीक्वेंस क्या होता है? जब बजट हाउस में लेके आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. सेकंड इज उस पर डिस्कशन होता है. थर्ड इज स्क्रूटनी होती है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, वो उस पर क्या करती है? स्क्रूटनी. फोर्थ इज वोटिंग होती है बिल पे. फिफ्थ इज अप्रोप्रिएशन एक्ट एंड पासिंग ऑफ ए फाइनेंस बिल. ये है लास्ट स्टेज. तो इसमें अगर मैं देखूँ, दिस इज ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, अगर इसको मैं सीक्वेंस में लगाऊँ. तो अगर बजट के बारे में पढ़ें तो बजट इज़ अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बजट एज अ वर्ड इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह मैंशन किया है अंडर आर्टिकल 112. बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट, जितना पैसा आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? बजट. जो उसका इक्विवेलेंट आता है, मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, दैट इज़ कॉल्ड बजट. और फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या है? अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर. बट इन 2017 व्हाट हैपन? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड द रेलवे बजट इनटू द जनरल बजट. तो रेलवे बिफोर 2017 रेलवे बजट एंड द सेंट्रल बजट वर डिफरेंट. Next is there are certain constitutional provision associated with the budget. The president goes to lead. President goes to lead budget to whom? Finance minister. Finance minister को बोलते हैं आप बजट लेके आइए, तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट हाउस में लेके आते हैं, ठीक है. सेकंड इज नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं कर सकता, नो डिमांड ऑफ ग्रांट, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है. थर्ड इज नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ कैन रिड्यूस, ठीक है, बाय लॉ. और ये अलग है. पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश बट कैन नॉट इंक्रीज इट. टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकती पार्लियामेंट, बट इट कैन रिड्यूस और अबॉलिश. फोर्थ इज राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, ठीक है. राज्यसभा बजट में उनको पावर नहीं है कि वोटिंग करने की, ओनली लोकसभा इज़ द पावर. ये यूपीएससी में कई बार पूछा है, ये याद रखना. 11 इज गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अपॉइंटेड द राज मन्नार कमेटी. जो पिछले 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था, हमने डिस्कस किया था कि राज मन्नार कमेटी किस स्टेट की है. राज मन्नार कमेटी इज रजिस्टर्ड विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट. सो उन्होंने किस पर्टिकुलर चीज़ पे रिकमेंडेशन दी थी? दे हैव गिवन अ रिकमेंडेशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन. और क्या रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेशन ये थी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो अंडर आर्टिकल 263 है शुड बी सेटअप, ठीक है. फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी. फाइनेंस कमीशन 5 साल में एक बार बनती है, तो इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी. प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड, जो अभी हो चुकी है बिकॉज नीति आयोग केम इनटू पिक्चर. आर्टिकल 356, 57 एंड 65 इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए. दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ राज मन्नार कमेटी ऑफ 1969, जो तमिलनाडु डीएमके गवर्नमेंट ने बनाई थी. और सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट लिस्ट, ये उनका रिकमेंडेशन था. और जो रेसिडुअरी पावर होती है, रेसिडुअरी पावर अंडर आर्टिकल विच वन आई फॉरगॉट, बट वो किसको देनी चाहिए? शुड बी अलॉटेड टू द स्टेट. एंड ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी अबॉलिश्ड. क्वेश्चन नंबर 12, विच वन द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ द धार कमीशन. धार कमीशन की मैंडेट क्या थी? इट वाज अपॉइंटेड इन जून 1948 to examine the feasibility of creation of new state on the basis of linguistic factor, के भाषा के आधार पर डिवीजन ऑफ ए स्टेट, ठीक है. बट उनका क्या रिकमेंडेशन आया था? कि रिकमेंडेशन ये था रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, बिकॉज देर आर मैनी सो मैनी लैंग्वेजेस,
हर 50 किलोमीटर या 10-20 किलोमीटर पे एक नई लैंग्वेज हमें इंडिया में मिलती है। अगर हम उस बेसिस पे डिवीज़न करने लग गए स्टेट्स का तो देयर विल बी सो मैनी स्टेट्स। तो एस्केदर कमीशन जो 1948 में आई थी, इन्होंने रिकमेंड क्या किया था कि अगर स्टेट का डिवीज़न करने से, ठीक है, वी विल गेट अ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सिस्टम में और ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, तो हमें कर देना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अनदर कमेटी, जेवीपी कमेटी, जो दिसंबर में बनी थी, ठीक है, जून के बाद, बिकॉज एस्केदर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो देर आफ्टर द जेवीपी कमेटी केम इन टू पिक्चर। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। अगेन क्या हुआ, देर विल बी अ टर्मोइल और देर वॉज सो मच प्रोटेस्ट इन द कंट्री। अगेन फजल अली कमीशन ऑन दिसंबर 1953 केम इन टू पिक्चर, और इसके 2 और मेंबर थे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू, ठीक है, फजल अली उनके चेयरमैन थे। और सेकेंड इज एक्सेप्टेड, दे हैव एक्सेप्टेड द बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया उन्होंने मान लिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विल क्रिएट, बट एट द सेम टाइम इट रेजरेक्टेड अ थ्योरी, एक थ्योरी उन्होंने दी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं हो सकती। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, सैकड़ों में लैंग्वेज, ठीक है, इतनी स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट हो सकती है, बट लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया हो सकता है स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का, बट 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं हो सकता। सो our answer is B, to recommend whether a state can be recognized on the linguistic basis. Question number 13 is, which of the following pairs is or are correctly matched? First is rule of lapse, second is supplementary grant, third is vote on account. So all are incorrectly matched, because rule of lapse is related to the lapsing of bill, not with the grants. Second is supplementary grants, it is generally or mostly authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service. एक सर्विस में if it's need more such grants, then it comes through the supplementary grants. Third is vote on account. vote on account इसको थोड़ा समझते हैं कि बजट को पास होने में 2 महीने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज देर आर 6 स्टेप्स टू पास अ बजट। उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका डिस्कशन होता है, उस पर स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी की, देर आफ्टर उस पर वोटिंग होती है, ठीक है, देर वोट ऑन अकाउंट, सो मैनी थिंग्स। इसमें 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन सरकार को तो काम करना है, सरकार को काम करने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है, तो पैसा चाहिए, तो उसमें 2 मंथ का पैसा सरकार को मिलता है ऑन वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट इंट्रोड्यूस करती है सरकार लोकसभा में, तो वो पास होने के बाद सरकार के पास पैसा आ जाता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट। सो इट इज़ एडिशनल फंड्स ग्रांटेड इन द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देयर आर मैनी सच ग्रांट्स। देखो बजट क्या है, बजट इट्स अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि सरकार के पास जो इनकम आ रही है और उसका एक्सपेंडिचर कैसे करना है वो बजट के थ्रू होता है। सो ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, है ना, इसरो वगैरह सबको पैसा दे रहे हैं। सो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, एक तो वो है बजट। बट देयर आफ्टर विद इन द फाइनेंशियल ईयर इफ़ वी सी एनी अनफोर्सिन कंडीशंस, हमें किसी पर्टिकुलर स्कीम हमने लॉन्च कर दिया जो बजट में उसका जिक्र नहीं था, बट वी हैव टू गिव ग्रांट टू दैट पर्टिकुलर स्कीम और एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो वो किसके अंडर होता है, जैसे वो एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है, दीज आर द सर्टेन ग्रांट्स विच इज़ आउटसाइड द बजट, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। थैंक यू, आई होप you like the video.